हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं आप लोगों से नाबार्ड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सेशन में। और क्या है ये नाबार्ड से रिलेटेड सेशन, क्या होने वाला है, इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे। और आप लोगों का जो एक्साइटमेंट है कि नाबार्ड 2022 का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो आइए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को प्लीज शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एज वेल एज एसओ अड्डा 24/7, जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी स्पेसिफिक चैनल है। ओके, सो हमारे साथ अमृत मैम है। मैम, वेलकम टू द सेशन। एंड सो मैम स्टार्ट करेंगी, नाबार्ड के बारे में हमें कुछ बताएंगी, सब्जेक्ट्स के बारे में एक एक करके। आपके बहुत सारे फैकल्टीज हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी तो मैम इतने सारे हैं। ओके, ESI है, ARD है, यू हैव इंग्लिश, GA, मैथ्स, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज अभी नहीं पढ़ेंगे, वैसे अभी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्लीज मैम गो अहेड। Yes, guys. So you all know about NABARD Grade A, I'm sure, because we have taken many sessions for the syllabus, for the pattern, for which all subjects will be covered, what all will be the weightage of the particular section here. So guys, if I specifically talk about English, I'll be teaching and taking up the English subject here. And guys, when we talk about English here, of course, जो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, that is just that 40 questions, 40 marks. So this is something which has to be kept in mind. 40 questions, 40 marks. And when we take up English, we have number of sections, number of topics which will be covered in this particular part. Right away, starting with the RC part, or taking up your clauses, taking up your fillers. So guys, ऐसे कुछ काफी सारी चीजें हैं जो हमें इसमें cover करनी है. Now, the point is, what is the right strategy? What is the right approach to solve your RC? And apart from them, solving them within time. This is which matters a lot. So within time, your consistency, your focus, and of course your perseverance of doing all these things together will make a difference. Again, if you all know, the phase 1 will be comprising of 120 minutes. That is your 2 hours. Yes, sir, 2 hours. Yes. For phase 1. And moving up to phase 2, again, we will be discussing that also. But abhi hum focus karte hain. Let's just figure out all the subjects covering, which is covered in your phase 1 examination. So, but if you talk about reading comprehension, clause test, fillers, and then your sentence improvement, then focusing on the grammar part, of course. And here, when I divide English into 3 segments, I will solely be writing your vocabulary, grammar, and your reading comprehension. So when I write vocab here, or when I take up the reading comprehension and the grammar portion. So vocab will make sure that, guys, the coverage of your clause test, fillers, questions based on your antonym, synonym, your idioms and phrases, everything is here covered in all of them. Right. So I think I said it 40 and 40. This is 30 questions, 30 marks here. When we talk about reading comprehension, precisely we'll be understanding the reading part, how to focus, how to grab that pace over or how to get that edge over reading comprehension. Now, guys, marking some quality reading, marking some keywords, skimming what is not required, and then focusing on what actually is required and how to relate your questions with the paragraph, how to make that connectivity, how to relate and figure out the right answer, the accurate answer. That is what matters in the reading comprehension. And for all of you, this is information. If we talk about this particular part, I am already taking one 8 a.m. session on the Hindu analysis, focusing on your reading, focusing on your articles. If in case you are really weak at this part, I would request to all of you to join this session daily, because this is happening from Monday to Saturday on regular basis. And when we talk about grammar, my dear, grammar is something which will cover your parts of speech here, which will cover your articles. And again, we have 8 parts in part of speech. We have articles here. We have subject-verb agreement. We do have your tenses, your voice. So each and everything, focusing on the rules, on the concepts, on the basic criteria, how to figure those rules, how to make sure you're very perfect with those rules so that you can solve the questions there and then. So having that command will again make the difference. Again, I will say that only. So now I think, Niharika ma'am, would you like to discuss something over in part phase 1?
We're not able to hear you. I think you're mute. Ma'am, regarding NABARD Grade A Phase 1, the Phase 1 is something where you have English. Before the 2021 changes, it was very important, because with just a few subjects, you could score more. Right now, it is now out of the merit section, but again, it's a part of the qualifying area. So Yes. that means we have to score at least 30, if the target is of 30 marks, which was earlier of 40 marks. If we actually follow it consistently, it's not going to help you in the phase 1, but it's going to help you in the phase 2 as well. Because whatever you are working, while you are working with ma'am, you're working on your vocab. That means you are also helping yourself in descriptive area for phase 2, which is not only related to English, but you're going to type in English in terms of ASI as well as ERD as well. That means by just doing one particular thing, that is working on your English, you are actually working on all the merit sections of this particular subject properly. And English is not something where you can just learn everything in a day. Rome was not built in a day. Same thing goes with English. Yes. Very true, very true. So well said. I think, guys, this is again, ma'am has completely given just 1-2 lines only, that again you have to be very specific. Start practicing right now, because this is somewhere and some part which will eventually help you out in your phase 2 examination, which is again you need a core practice that is wholly and solely described on your phase 1 and the preparation, because the writing part is something which needs this consistent practice. All right, now I think we have discussed English part here very well, and ma'am, you can just now come and make it forward. So, hi everyone. I hope everything is clear about the English section, which ma'am, Niharika ma'am and Amrit ma'am, talked about very, very precisely. Now, let's have a look at the GA section, that is the general awareness section. NABARD में 20 questions आते हैं of 20 marks, but GA के साथ advantage ये रहता है, if you get into the habit of newspaper reading, आपने newspaper reading का habit start कर दिया, and you also prepare for ESI, you also prepare for ARD. So basically, it helps you not only phase 1, same goes for GA as well. It also helps you in the long run in essay writing and descriptive writing for the phase 2 as well. So on a daily basis, Monday to Saturday, I take up classes for general awareness, relevant for all the regulatory body examinations. And then again, you must be thinking that GA is very, very vast, and kya padhe, kya nahi padhe. There must be a lot of confusion regarding that. So for that purpose, I have also divided the GA questions on the basis of, the types of questions that are being asked in NABARD Grade A, based on questions like government schemes, right? And based on questions that are based out of static GK. ARD एग्रीकल्चर की रिपोर्ट्स जो नाबार्ड पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट आप जाके देख लो, रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितनी नई इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं या फिर पॉलिसीज हैं, do have a good look on them. And normally that you prepare for general awareness, जितने भी financial awareness से related questions हैं, we do practice MCQs on a daily basis. So if you get well versed with the habit of newspaper reading, if you get in the habit of solving MCQs on a daily basis, then GA for phase 1 at least will be a cakewalk for you guys. Because if you already know the answer, it hardly takes a 30-second of time to mark the correct choice. And it also helps you in the long run for phase 2, and not only for phase 2 but also for the interview stage as well. So stay tuned with Adda 247 Regulatory Bodies channel, and do follow my current affair videos for the GA section. Okay, and now I guess who will take over? Ma'am will discuss about her topic. Thank you so much, ma'am. हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को पता है कि नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम, उसी की नोटिफिकेशन रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो इसमें आपका ARD एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मेजर रोल है आपके फेज 1 में भी एंड फेज 2 में भी। फेज 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड आप लोग का ऑब्जेक्टिव पार्ट, दोनों में आपका ARD सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है। तो ARD के पार्ट में मैं आप लोग के 4 मेजर सब्जेक्ट्स डील करने वाली हूँ। तो वो जो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं गाइस, उनमें से एक में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, दैट इज एग्रीकल्चर एंड फार्म इंजीनियरिंग, राइट? तो एग्रीकल्चर एंड फार्म इंजीनियरिंग में बहुत सारा पोर्शन ऐसा होता है जो कि स्टूडेंट्स को
अगर हम थियोरी पार्ट में कहें तो वो क्लियर होता है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं उनमें बहुत ज्यादा डाउट होता है। तो वो वाला तरीका कैसे हम लोग थियोरी पार्ट एंड साथ में उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एंड इसी के बारे में डेली बेसिस पर आप लोग की क्लासेस भी हो रही हैं एग्रीकल्चर 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो मॉर्निंग में 11 बजे हम लोग की क्लासेस होती है, जिसमें हम आपका डेली बेसिस पर और ऑल्टरनेटिवली कभी आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, कभी हम लोग फिशरीज के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, कभी आपका फॉरेस्ट्री वाला पोर्शन कवर होता है एंड साथ में आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, राइट। तो ये जो 4 मेजर सब्जेक्ट हैं, अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपका एआरडी वाला जो पोर्शन है वो आपके 40 क्वेश्चंस कवर करने वाला, राइट। 40 क्वेश्चंस यानी कि 40 मार्क्स। तो इसमें से आपके 4 ये सब्जेक्ट्स हैं जहां से आपके मेजर क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। तो YouTube पर क्लासेस हैं आप लोगों की जहां से आप अपने ये सब्जेक्ट्स के कुछ एमसीक्यूज एंड कुछ बेसिक क्लियर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं जो एआरडी के अंदर इंक्लूडेड है, हमारी पूरी टीम है और पूरी स्ट्रैटेजी है कि कैसे आप लोग का नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम हमको क्लियर कराना है, कैसे मतलब हमें एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच फॉलो करनी है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं कलेक्टिवली कवर हो सके। और जो भी आप लोग को अगर डाउट है नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम को लेकर या फिर सब्जेक्ट्स को लेकर, तो आप मॉर्निंग में 10 AM एंड 11 AM के जो रेगुलर सेशंस हैं एग्रीकल्चर 24/7 के प्लेटफॉर्म पर, वो सब ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोग के साथ डेली बेसिस पर जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को एक स्मूथ पाथ पर लेकर जा सकते हैं। अभी आपके संदीप सर आ रहे हैं आप लोग के सामने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर बात करने के लिए और आप लोग उससे डिस्कस करने के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जी सर। सब्जेक्ट से पहले कुछ डाउट्स देख लेते हैं मैम। सो यहाँ पर सर इज द नोटिफिकेशन आउट? अनामिका, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, बट एज वी नो हर 1 साल या 1 साल 2 महीने ऐसे गैप में जनरली नोटिफिकेशन आता है, तो अब की बार भी आएगा। मैम, इंग्लिश एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर क्वालिफाइंग, राइट? यस, इंग्लिश एप्टीट्यूड, रीजनिंग, decision making, these are all qualifying. The portion that will decide your merit are ARD, ESI and GA. For phase 1, of course. Okay, do you have a dedicated paid batch for NABARD? Yes, Anamika, we have a paid batch for NABARD and we are going to reveal it at the end of this session. Okay, so please stay tuned with us. And apart from that, madam, it's only for BSc Agriculture or any postgraduate. Ravi, this recruitment is for BSc Agriculture as well as any graduate. Forget about postgraduate. It's for any graduate who had scored 50%. I guess 60% is for general category, that is the unreserved, and 55 I guess is for SC and ST. Still I'll give a clarification regarding that. And apart from that, yeah, so GA, ARD and ESI are your qualifying parts. So before we proceed, I would request Shivam sir to please go ahead with his part and shed some light on this. Shivam sir, am I audible? Shivam sir, am I audible? No, Salma, it's not a recorded class. We are live. Shivam sir, am I audible? So, यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है सर की। Okay, so guys, there is a technical issue. So let's we are figuring it out. Okay, before that, let's I would like to give you a more insight on ARD. So guys, ARD, Agriculture and Rural Development, as you can see यहाँ पे 2 parts हैं, एक आपका एग्रीकल्चर है और दूसरा आपका रूरल डेवलपमेंट है। ओके, इस केस में अगर मैं बताऊं तो एग्रीकल्चर में आपके बहुत सारे मेजर टॉपिक्स हैं, लाइक basics of agriculture, you have agronomy, you have soil science, you have fishery, forestry, engineering, then you have horticulture. Okay, so बहुत सारे different portions हैं और animal husbandry is also one of the important portion of agriculture. And apart from that, one major portion is rural development, जहाँ पे आप बहुत सारे schemes के बारे में सीखते हो और schemes के साथ साथ यहाँ पे different kinds of पंचायती राज institution कैसे बना था, all of these things. Okay, so जैसे कि यहाँ पे forestry, agricultural engineering एंड फिशरी जो पोर्शन वर्षा में हम डील करने वाले हैं उसके बारे में तो हमने देख लिया। आगे देखेंगे हमारे साथ और भी आपके फैकल्टीज हैं जो अलग अलग एग्रीकल्चर के पोर्शंस डील करेंगे।
ओके, सो अभी हम लोग गौरव सर को बुलाना चाहेंगे, ओके, और समझेंगे कि उनका जो पोर्शन है उसका कितना इंपॉर्टेंस है और किस तरह से आपका अप्रोच रहेगा। वेलकम सर। Sure, sir. Thank you, sir. So, hello everyone. Very warm welcome. My name is Gaurav Singh Bhadoria, and I'll be taking the reasoning ability classes. So, अगर reasoning की हम बात करें, so total आपके पास दो sections है. One is reasoning ability, and the second one is decision making. So, अगर उनकी distribution की मैं बात करूं, so related to reasoning, we have 20 questions, 20 marks, and second one is decision making. Here we have 10 questions and 10 marks. So अगर हम पहले बात करें रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन की, so वहां पे सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से भी रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, अगर ये दो टॉपिक आप देखेंगे तो मेजोरिटी क्वेश्चंस आपके उसमें से फ्रेम होते हैं. तो अगर इसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे जाए, सो फर्स्ट वन इज द पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट. आप इसमें भी अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लोर बेस्ड पजल्स, मैट्रिक्स बेस्ड पजल्स, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट. तो ये सारे आपके अलग अलग टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम दिस सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी. 20 क्वेश्चन है आपके, 20 मार्क्स के. उसके बाद जो एक जरूरी सेशन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दैट इज डिसीजन मेकिंग. इसमें आपके काफी सारे टॉपिक्स आते हैं. फॉर एग्जांपल आपके स्टेटमेंट अजम्पशन आ सकता है, जहां पे आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किस अजम्पशन के बेसिस पे दिया गया है. फिर आपको स्टेटमेंट 2-3 गिवन होंगे, आपको बताना है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है. या फिर आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन आ सकता है. कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन होगा, फिर आपको बताना होगा कि उस स्टेटमेंट से पर्टिकुलरली आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या रिजल्ट उससे हम निकाल सकते हैं. उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट हो गया. कॉज एंड इफेक्ट में आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, आपको उसमें से देख के बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट कॉज है और उसका इफेक्ट कौन सा है. या फिर दोनों स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल कॉज के इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है. इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका हो जाएगा स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्टेटमेंट. इस टाइप की अगर हम बात करें, सो आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, उसको फेवर करता हुआ कौन सा स्टेटमेंट है, जो भी फेवर करेगा वो उसे स्ट्रेंथनिंग करेगा, जो भी उसके अगेंस्ट होगा या फिर फेवर में नहीं होगा वो उसको वीकनिंग करेगा. सो ये कुछ 4 से 5 टॉपिक्स होते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग में आएंगे. 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो रीजनिंग का सेक्शन मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का, उसमें काफी सारे छोटे टॉपिक्स हैं. फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया. मेजर जो पोर्शन है वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का होगा. उस पे हमेशा हमें ज्यादा फोकस रखना है. तो जो भी हमारा कोर्स प्लान्ड है, जो भी हम फ्री सेशंस आपके लिए लेके आएंगे, तो डेफिनेटली हमारा मेन फोकस आपका पजल सिटिंग अरेंजमेंट पे होगा, प्लस जो आपका डिसीजन मेकिंग है उसे भी हम साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करेंगे. सो रीजनिंग सेक्शन से ये सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, एंड ऑल्सो फ्रॉम डिसीजन मेकिंग. नाउ लेट्स कॉल मैम, जो आपको और थोड़ा डिटेल में बताएंगी. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. तो जो हमारा पोर्शन रहेगा वो ARD से रहेगा, यानी कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से. तो इसमें मैं आपके साथ डील करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ हॉर्टिकल्चर. ओके, सो हॉर्टिकल्चर अपने आप में ही काफी जो है बड़ा सब्जेक्ट है. इसी में आपकी फ्रूट क्रॉप्स भी आती हैं, इसमें आपकी वेजिटेबल क्रॉप्स भी आती है ना, और इसी में आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स भी आती है. तो प्लांटेशन क्रॉप, फ्रूट क्रॉप एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, तीनों क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट. तो ये पूरे जो पोर्शन है हॉर्टिकल्चर का, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स. ये पूरा हॉर्टिकल्चर का जो पोर्शन है ये आपके ARD के अंडर आएगा. तो ये पोर्शन जो है हम कवर करने वाले हैं. हॉर्टिकल्चर की ऑलरेडी आपकी क्लासेस रन हो रही है मॉर्निंग 11 AM ऑन मंडे. ठीक है, 11 AM ऑन मंडे आपको हॉर्टिकल्चर की ऑलरेडी क्लासेस मिलती है, जहां पर हम लोग MCQs प्रैक्टिस करते हैं. तो वो सेशन जो है आप जरूर अटेंड कीजिए, और हॉर्टिकल्चर के MCQs जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, उतने ही हम बेटर इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे. एक छोटा सा पोर्शन और हम यहाँ पर कवर करेंगे, विच इज सीड साइंस.
तो सीड साइंस अपने आप में काफी छोटा सा सब्जेक्ट है, हॉर्टिकल्चर जितना वाइड नहीं है, तो बहुत ही बेसिक है। इसमें सीड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सीड की डिफरेंट क्लासेस क्या होती है, सीड सर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या मिनिमम सीड क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, मैक्सिमम जो इम्प्योरिटीज होंगी वो कितनी अलाउड होंगी, वो सब चीजें हम सीड साइंस के अंडर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो दो पोर्शन है, हॉर्टिकल्चर अपने आप में काफी मेजर सब्जेक्ट है, एंड सीड साइंस। एआरडी के अंदर ये वाले टॉपिक जो है आप मेरे साथ यानी मीनाक्षी के साथ कवर करेंगे, और सुबह 11 बजे मंडे को आपकी हॉर्टिकल्चर की ऑलरेडी क्लासेस रन हो रही है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर। वो क्लासेस आप जरूर अटेंड करें और अपनी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर सकते हैं मंडे से ही। सो अब आपको हीना मैम बताने वाली है कि वो कौन से पोर्शन आपके कवर करने वाली है। लेट्स कॉल हीना मैम। Thank you, ma'am. So, hello everyone. I Hina welcome you all in Agriculture Adda. So, guys, कैसे हैं आप सब लोग? तो guys, बाकी सारे फैकल्टीज तो आपको बता ही चुके हैं कि वो क्या क्या पोर्शन आप लोगों का कवर करने वाले हैं। तो guys, ARD में ही यहाँ पर हम लोग के पास we have 40 questions and 40 marks. ओके तो यहाँ पर हमारे पास 40 क्वेश्चंस रहेंगे आरडी में और 40 मार्क्स हमें कवर करने हैं। इसमें आपका जो ये पोर्शन है, ये दिस इज नॉट ओनली क्वालिफाइंग पोर्शन, ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये आपका स्कोरिंग पोर्शन है। और दूसरी चीज गाइज, इसमें मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ एनिमल हस्बेंड्री। ओके, एनिमल हस्बेंड्री हम लोग करने वाले हैं इसमें। एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग एग्रोमेट्रोलॉजी का पोर्शन भी इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन पढ़ेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग काफी सारी चीजें कवर करेंगे, लाइक जैसे आपका ये फार्म एनिमल्स, कौन कौन से फार्म एनिमल्स होते हैं इंडिया में, कौन कौन से मेथड्स यूज करे जाते हैं आपके। इसके अलावा ये फॉडर मेथड, फॉडर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पोल्ट्री आपका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इससे पहले किस तरीके से आपका ये पोल्ट्री में कौन कौन से मेथड्स आपके यूज करे जाते थे, अभी क्या सिनेरियो है पोल्ट्री को लेकर के, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें एक छोटा सा पोर्शन और है आपके पास एआरडी में, एग्रोमेट्रोलॉजी का। वहां पर हम लोग डिफरेंट वेदर पैरामीटर्स को लेकर के जो आपके क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट हो गया, क्लाउड्स हो गया, इन सारे पैरामीटर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइज ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके एआरडी वाले पोर्शन में। तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसके अलावा आपकी क्लास और होती है एनिमल हस्बेंड्री की भी, मॉर्निंग में 10 AM में होती है, ऑल्टरनेट डेज पे होती है। तो गाइज आप उस क्लास को भी देख सकते हो यूट्यूब में। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट दिस पोर्शन ऑफ एआरडी। सो संदीप सर, अब आप नेक्स्ट। ओके सो गाइज आपको आई गेस जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे ना, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, ओके फेज 1 का इंग्लिश, एआरडी का मोस्ट ऑफ द पोर्शन के बारे में आपको पता चल गया। मैं आपको एआरडी के और थोड़े पोर्शंस के बारे में बताऊंगा, बट बिफोर दैट लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द इंग्लिश ऑफ फेज 2। देखो फेज 1 का तो आपको पता चल गया, इट्स 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, लेकिन व्हाट अबाउट फेज 2? फेज 2 में जो आपकी तैयारी रहेगी ना इंग्लिश की, एज वी आर सेइंग कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से, तो वो कैसी रहेगी? तो अब हम लोग जानेंगे निहारिका मैम से। सो मैम, आई वुड रिक्वेस्ट you to please go ahead and discuss about the English that will be asked in phase 2. Okay, so there's a difference between the phase 1 and the phase 2 when it comes to the descriptive portion, and the difference basically arises because the descriptive portion is basically an online, आपका typing वाला रहेगा, और इसके साथ साथ इसका syllabus आपके phase 1 से अलग इसलिए हो जाता है because phase 1 objective था और ये वाला completely descriptive हो जाएगा, जिसके अंदर आपको इसके लिए आपके you have been allotted 100 marks जहाँ पर ये इसके आपको examination के लिए होते हैं। So let me just share my screen first so that you can understand what exactly it is about. Okay, so when we look forward to this area, I hope screen is visible. Yes, ma'am. Now, when we talk about this area, what happens is in the examination, you have an essay. The essay is going to have options for you guys. यानी आपके पास option होगी, out of 4 you'll have to do any 2. ठीक है, any one. आपको कोई एक ऐसे करना है, you will be पिछली बार के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जाया जाए तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, और एज पर द पेपर इफ यू सी
तो इट्स नॉट अबाउट जनरल इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके पास। जब आप इंग्लिश की बात करते हैं इट्स गोना बी समथिंग जो ESI और ARD के अंदर से ही आपके पास टॉपिक्स निकल कर आते हैं, और अगर कुछ बच गया तो जो आप GA पढ़ रहे हैं ना वो भी आपकी यहीं पर काम आएगी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के अंदर। और साथ ही साथ आपका अगर ऐसे आएगा दैट वुड बी कैरिंग 40 मार्क्स। अदर देन दैट आपके पास पेपर में कॉम्प्रिहेंशन होगा दैट वुड बी ऑफ 30 मार्क्स, और आपके पास प्रेसी होगी 30 मार्क्स की, और या फिर आपके पास रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और लेटर राइटिंग होगी। बेसिकली ये आपके पास 40 मार्क्स का आएगा, और आपके पास पेपर में टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स आपके पास उन्होंने कुछ इस तरीके से इसे बांटा हुआ कि कोई एक क्वेश्चन आपका 40 का है और बाकी 2 क्वेश्चंस 30 के हैं। पिछली बार के अकॉर्डिंग जाया जाए तो देयर वाज एन एसे, देन वहां पर आपके पास एक प्रेसी थी और आपके पास थी ये लेटर राइटिंग वाला एरिया। तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ भी आ सकता है, इनमें आपके पास ऑप्शंस रहती है। दो एक्सपेक्टेड है कि ऐसे आपके पास कंपल्सरी आएगा। When we look forward to the phase 2 descriptive, one of the basic things that students really forget is that this particular paper is going to be an online one. That means it's not about knowing English, it's not about knowing the particular topic, it's about your presentation as well. अगर आपकी presentation poor है, so the entire part of attempting the paper is lost. बिकॉज आप उस चीज को पढ़ तो रहे हैं बट यू आर नॉट क्लियर अबाउट राइटिंग इट, एंड अगर आप उसमें क्लैरिटी के साथ में उसको लिख नहीं सकते, सो द एंटायर पॉइंट ऑफ गोइंग थ्रू द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर डाइज ऑल टुगेदर। इस पेपर के अंदर अगर आप एस्पिरेंट्स के नॉर्मली मार्क्स देखकर चले जो पिछली बार में आपको मिलते हैं वो 40s से 50s के बीच में ही है। यानी एस्पिरेंट्स पेपर तो देते हैं लेकिन पेपर को लिखने का तरीका कहाँ से निकालते हैं। आप ऐसे लिख रहे हैं लेकिन ऐसे के फ्रेमवर्क को कितना क्लियरली डिफाइन करते हैं, आप प्रेसी लिख रहे हैं उसके आपके बुलेट पॉइंट्स कितने क्लियर हैं, कितनी आप उसकी वर्ड लिमिट को फॉलो कर रहे हैं, कितने ग्रामेटिकल रूल्स आपको पता है, प्रॉपर ग्रामर आप प्रॉपर लिख रहे हैं, कि आपकी वोकैब कितनी स्ट्रांग है। देयर आर मेनी थिंग्स जो अपने फेज 1 पे काम किया होता है, दैट बिकम्स द बेस for your phase 2 when we talk about the English descriptive area. So when you're preparing for that, make sure that आप अपने time management और अपनी presentation दोनों पर work करते हैं। And this particular paper is going to be of 90 minutes. यानी आपके पास 1.5 घंटा रहेगा to complete this 100 mark paper. So don't take it lightly because I don't think English can be done in a day there. उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए कि आप presentations, इनके formats और बाकी इसके ऊपर focus कर सकें। ठीक है? So this is all about the English descriptive. Okay, thank you so much, ma'am. So अब आपके बचते हैं quant, ESI and ARD का कुछ पोर्शन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले I would request शिवम सर to please go ahead and discuss about his topic. ठीक है, तो उनका जो पोर्शन है वो कितना अहम है इस एग्जाम के लिए, क्या क्या आने वाला है, तो ये हम लोग सुनेंगे शिवम सर से। Please go ahead, sir. Okay, thank you, sir, and thank you all the mentors. I hope मैं अब audible हूँ सभी लोगों के लिए। एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिए सर, ऑडिबल हैं क्या? Yes sir, you are audible. Please go ahead. Okay, so it's fine enough. काफी देर से वेट कर रहा था। So again thanks to all the mentors. सारे के सारे जितने mentors हैं उन्होंने बहुत अच्छे से explain किया each and everything. So you know you will get quantitative aptitude in only first paper, and it will be of 20 marks, and 20 question will contain क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके लिए हमेशा एक स्कोरिंग सेक्शन होता है और कम टाइम में आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है फॉर नाबार्ड एग्जामिनेशन देयर इज नो कंपोजिट टाइम फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, राइट? इट विल बी ओवरऑल टाइमिंग फॉर ऑल द सेक्शन। सो इफ योर quantitative aptitude will be good, then you can score more in a very less time. And one more thing is this: the syllabus is not different any kind of banking examination, right? So यहाँ पे आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है। जो भी आपके पास बैंक के एग्जामिनेशंस हैं, जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन करते हो, सेम वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आप यहाँ पे पाने वाले हैं, और आपको जितना अच्छा आपका ये सेक्शन होगा उतना आपको बेनिफिट होगा ओवरऑल अच्छा स्कोर करने में, राइट? और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो। सो इसके लिए जैसा कि आप सभी अभी जितने भी मेंटर्स थे वो शेयर कर रहे थे, हम लोग एक बैच लेके आपके लिए आ रहे हैं।
ये जो बैच है वो आपका 18th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो इस बैच में मैं आपको पूरी की पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो प्रिपरेशन है वो कराने वाला हूं, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी की सारी ट्रिक्स। और स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पे जब हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो हम लोगों से यहाँ पे क्या कह रहे हैं। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस में वो सारी चीजें हैं जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं, राइट। सो जब हम लोग सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट यू नीड टू प्रैक्टिस एंड you need to know how we can solve number series. If you didn't know the concept, if you didn't do practice hard, then you cannot get more score in number series. But if your practice is good, then it will take very less time and you can score good also, right? So number series, quadratic equation, this is also very easy topic. When you work on quadratic equation within a day, you can make a command on quadratic equation, right? Next topic is simplification and approximation. This will be basically based on addition, subtraction, multiplication, division, squares, tables, cube root, square root, right? So if you know the concept, if you learn the table, if you learn the squares, cubes, then you definitely will understand how we can find out the square root, cube root also. And you have to work on addition, subtraction, and multiplication. And when you will make command on this topic, this will help you for all the quantitative aptitude section, right? So this is very important topic among all the topics. So you have to focus more and more on this topic, right? Now, topic is data sufficiency, arithmetic questions also, data interpretation, mathematical equalities, and quantity comparison. So quantity comparison हो, या फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो, या फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हो, या फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हो, ये सारा का सारा पोर्शन जो है आप केवल और केवल तभी प्रिपेयर कर पाओगे जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी अर्थमेटिक सेक्शन की। दैट मींस यू हैव टू मेक द कमांड ऑन अर्थमेटिक चैप्टर। व्हेन यू मेक कमांड ऑन अर्थमेटिक चैप्टर, देन your data sufficiency will be good. Then you can solve the quantity comparison questions. Then you can find out the mathematical inequalities also. Then you can solve the data interpretation question like as percentage. You have to make on command percentage, profit and loss, allocation, ratio, average, and etc. Right? So syllabus is according to whole banking syllabus. But important thing is this: you will get 20 question, and 20 question contain 20 marks. So this is only the section where you can score 20 out of 20 within a very less time. So I am coming with a wholesale strategy. I told you what we will do with you all, right? So batch will be started from 18th of July. Timing already shared by all the faculties. So I hope you will get it also. And now sir जो है वो आगे आपको बताएंगे और बाकी चीजें क्या होने वाली है। थैंक यू सो मच सर। सो स्टूडेंट्स के कुछ डाउट है सर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ओनली क्वालिफाइंग? यस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज ओनली क्वालिफाइंग। आपको मेरिट इससे नहीं बनेगा। मेरिट आपका सिर्फ ESI, ARD और GA से बनेगा। अब ESI, ARD की बात कर ही रहे हैं तो फिर ये ESI के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे कि इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो ESI है जो 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस का फेज 1 है और फेज 2 में भी उसका डिस्क्रिप्टिव आएगा, उसके बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर आइए बात करते हैं, जानते हैं ESI के बारे में फ्रॉम निहारिका मैम। मैम प्लीज गो अहेड। Okay, so let's talk about this area. As you guys know कि अगर ARD important है, बिकॉज अगेन वो मेरिट सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, वैसे ही ESI भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ESI के अंदर आपके पास में काफी सारी चीजें आ जाती हैं दैट कैन बी कवरिंग द बेसिक ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन एरिया, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, यानी जो आप GA में पढ़कर आ रहे हैं ना, चीजें जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं वो आपको यहाँ पर भी बेनिफिट देगा। किस तरीके से? लेट्स लुक एट इट। जैसे हमारे पास क्या आ जाता है, नेचर ऑफ द इकोनॉमी देयर, दैट इज गोना बी देयर। आपके पास द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसके अंदर इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है। देन यू कैन सी इसमें ग्लोबलाइजेशन का पोर्शन भी कवर हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन दैट हैपेंड इन 1991, हाउ इंडिया हैज कोप्ड अप विद इट, वो वाला आपके पास आ जाता है। इसके अंदर आपके पास इन्फ्लेशन का टॉपिक आ जाता है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जो कि उसके अंदर कोई भी आपके पास
एरिया आ जाता है, जो लेटेस्ट अभी स्कीम्स चल रही हैं पॉवर्टी एलिवेशन की, वो सारी आपको पढ़नी है, वो आपको यहाँ पर भी हेल्प करेगा आपके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के लिए। रिमेंबर, दोनों ASI और ERD जो है वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव में भी कवर्ड है, तो आपके लिए डिस्क्रिप्टिव के पोर्शन में भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन सही रख पाए, राइट। सो ये भी हमारे पास एक देखने वाली चीज हो जाती है। और उसके साथ साथ में हमारे पास द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिगार्डिंग आपके पास पूरा इसका वर्किंग आ जाता है। देन हमारे पास पॉपुलेशन ट्रेंड्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक आ जाता है, हाउ हैज द पॉपुलेशन ग्रोन इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ अ कंट्री, क्या उसका इम्पैक्ट रहता है, पॉपुलेशन पॉलिसीज हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या रही हैं, दैट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। पॉवर्टी वाले एरियाज को अच्छे से करना है, इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से करना है, ग्लोबलाइजेशन आपने कहीं ना कहीं इसको काफी जगह पढ़ा हुआ है, इसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका बेस आपको मिलेगा 1991 से। तो ये कुछ ऐसे एरियाज है जिनके ऊपर आपको वर्क करना होगा, ये आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट, इसका जो सिलेबस है दैट इज क्वाइट एक्सटेंसिव। उसके बाद इसी के अंदर आपके पास जो सेकंड पॉइंट कवर हो जाता है दैट इज हमारे पास सेकंड आ जाता है इसमें ना डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन भी कवर्ड है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारे पास तो एग्रीकल्चर है दैट इज देयर इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एज वेल। ESI के अंदर आपको एग्रीकल्चर को पढ़ना है बट नॉट द वे आप ARD में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी आपको ये चीज देखने को मिलती है, किस तरीके से यू कैन फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द स्टेटस और टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें आ जाएंगे। This agriculture is not the technical one, it is agriculture from the point of view of the economy. So ये आपको उस तरीके से उस चीज को पढ़ना है कि हमारे पास कौन कौन से इश्यूज हम फेस करते हैं फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग हमारे कंट्री के अंदर, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो रूरल क्रेडिट देती हैं, देन हमारे पास इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसीज क्या चल रही हैं, वो सारी चीजें आपको कवर करनी है। एग्रीकल्चर के बाद आपके पास ये इंडस्ट्रियल लेबर वाला आ गया, फिर रूरल नबार्ड है तो रूरल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया कौन से हैं, हाउ आर दे वर्किंग, वो यहाँ पर आपको कवर करना है। सिंस हमने ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया की बात की है, इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन आई थी 1991 के अंदर, विद द इंसेप्शन ऑफ दिस ईयर वी हैड फेस्ड यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों एलिमेंट्स हमारे एक साथ आए थे। तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत यहाँ से तो हुई नहीं थी, तो कौन शुरुआत कर रहा था, who are the people who have been the funding organizations of the world, for example आपके पास IMF आ गया, देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, WTO है यानी वो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, और रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, किस कौन सी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हमारी वर्ल्ड के ऊपर एक इम्पैक्ट रहता है, उनका एक रोल प्ले है। दिस इज व्हाट यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड इनकी ना इवन जो आपका MCQ बेस आता है, यानी जो आपके पास फेज 1 है उसमें भी इसके ऊपर कहने में क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं कि कौन सी मीटिंग्स, कौन सी आपके पास ऐसे कोई समिट्स हुई है, उनके अंदर क्या आया था, वो आपको पढ़ के चलना है, क्योंकि वो GA में भी आपको हेल्प कर रहा है और ये भी कर रहा है। आई डोंट थिंक कोई एस्पिरेंट ये कह सकता है कि मैम हम GA पढ़ रहे हैं तो ESI का उससे क्या लिंक होगा या ARD का उससे क्या लिंक होगा। जब आप इन चीजों को एक्चुअली पढ़ेंगे आपको लगेगा ये ट्रायो साथ ही चलता है, और ये ट्रायो कुछ ऐसा है जो फेज 1 में भी आपको हेल्प करता है और फेज 2 में भी आपको ये कैरी फॉरवर्ड करता है, ठीक है। अदर देन दिस आपके पास दिस इज अ वेरी एक्सटेंसिव सिलेबस। वंस यू आर डन विद इकोनॉमिक एरिया देन कम्स सोशल इशू, यानी सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया किस तरह का है, हमारे कंट्री के अंदर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या है, हमारे कंट्री एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अर्न कर रहा है उसका क्या है, हमारे कंट्री के अंदर हम लोग एक चीज तो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमें, वो है migration and urbanization. During the COVID period, you must have seen that people were migrating a lot. There are so many people have migrated. उसके भी तो कुछ specific issues हैं. They also have an impact on the country. Gender issues जो हमारे country के अंदर रहते हैं, sex ratio is one of the basic top of the town every now and then because there is there's an inequality over there. फिर social infrastructure हमारे country का कैसा है, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अगेन इसके अंदर आपका जो बेसिक्स, आपका जो स्टैटिक है वो आपका यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन अब इसका करंट सिनेरियो क्या चल रहा है वो आपने GA में एक तरह से कवर किया ही होगा, ठीक है। देन कम्स एजुकेशन का स्टेटस एंड सिस्टम ऑफ इंडिया, एजुकेशन क्या चल रही है हमारे कंट्री के अंदर, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, इलिटरेसी से जुड़ी, इलिटरेसी इज वन ऑफ द बेसिक इविल्स जिसके चलते हमारे कंट्री के अंदर आज भी हम पॉवर्टी के विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, उसका आपको इम्पैक्ट पड़ना है। देन एजुकेशन की रेलेवेंस क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस तरीके से आई है उसका एरिया भी आपको यहाँ पे कवर करके चलना है। देन इज द एरिया ऑफ सोशल जस्टिस,
Now in terms of the social issues, the injustice is there and that particular area is to be covered कि SCs के साथ में क्या हुआ है, STs के साथ में क्या problems face किया उन लोगों ने. Then socio-economic programs जो हमारे चल रहे हैं for upliftment of both these classes and other backward classes. What are the various things that we are doing? And positive discrimination in favor of the underprivileged people. That means आपका Indian political system किस तरीके से उसको support कर रहा है, human development हमारे country में कैसे हो रही है, and then इसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा ना current economic and social issues. This is basically the GA from the point of view of economic and social issues. यानी आप economic awareness अपनी बढ़ाए रखें ताकि आपको static में तो help हुई हो, because once you read about the past कि what has happened in the past, you need to know what is happening in terms of today as well. क्योंकि जब आप descriptive writing पर आएंगे ना तो वहां पर आपके पास option नहीं होती है. In terms of descriptive writing, you have to be very clear, right? So this is the area to be covered for the economics and social issues. So this is basically both economics वाला area plus उसके बाद social area आगे यानी वो social issues का area. इसका जो आपका syllabus है वो common रहता है for phase 1 as well as phase 2. But फर्क क्या है? phase 2 के अंदर आपके पास descriptive questions भी आते हैं 15 marker and 10 marker. ठीक है, जबकि और इसके साथ में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपके पास 2 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर डीलिंग विद एंड इन टॉपिक्स को एक्सटेंसिवली पढ़ना जरूरी होता है बिकॉज मेरिट मेकिंग तो ESI और ARD से बनती है और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है जिसके लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है. सो ओवर टू यू सर. थैंक यू मैम. सो गाइज आई गेस आप लोगों को पूरा आइडिया मिल गया होगा. ओके मुझे पता था कि हम ये जो नाबार्ड का सेशन है ना कभी इसको शॉर्ट टाइम में कर भी नहीं पाएंगे. इट कैन नॉट बी लाइक द अदर सेशंस की 10 मिनट में हो गया, 15 मिनट में हो गया, क्योंकि एक इतना बड़ा एग्जाम है और इसके जो सब्जेक्ट्स है ना वो उतना ही, इसका जो स्कोप है और जो आप पढ़ते हो वो उतना ही वाइड है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे टाइम तो लगना था, लेकिन आई गेस कि जितना भी टाइम यहाँ पे लगा हमारे इस सेशन में आपको हर एक चीज बहुत ही क्लैरिटी के साथ पता चला. और अगर मैं गाइज इसको रैप अप करता हूँ थोड़ा ARD के साथ. ओके अगर मैं ARD की बात करूं तो जनरली यहाँ पे क्या है कि ARD बेसिकली 2 पोर्शन में यहाँ पे डिवाइडेड है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ओके ARD का जो पोर्शन है इसको मैं इसके लिए मैं एक डिटेल्ड सेशन लेके आऊंगा आपके लिए. ओके सो बेसिकली कि ARD में कैसे क्या अप्रोच करना रहेगा. इफ यू आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड तो आप कैसे अप्रोच करोगे, बट फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट यू शुड नो द सब्जेक्ट, जैसे कि बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या है. देन यू हैव एग्रोनॉमी, जिससे जो बेसिकली हम कहते हैं ना कि यार खेती कैसे करते हैं, फसल कैसे उगाते हैं, कितना पानी चाहिए, कितना धूप चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एग्रोनॉमी. देन वी हैव सॉइल साइंस, मिट्टी में क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, क्या हमारी मिट्टी एकदम परफेक्ट है फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप, यस और नो, उसके बारे में. उसके बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है. देखो इंजीनियरिंग कहाँ नहीं है, हर जगह है, ठीक है. इस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं दिस इज ऑल्सो अ मशीन, दिस इज ऑल्सो गैजेट, दिस इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग. सो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्टर्स एंड अदर मशीनरीज. ओके साथ ही साथ आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, बट हाँ इतने सारे सब्जेक्ट कवर करने पढ़ेंगे. ओके देन यू हैव एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, और साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट में पंचायती राज सिस्टम आ जाता है. एंड ऑब्वियसली यू हैव डिफरेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. ओके सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इनमें क्या क्या है, देखो डिटेल में बताने के लिए अगेन वी नीड सम मोर टाइम और आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस सेशन और ज्यादा खींचूं, ठीक है. सो मैं इसके लिए अलग से सेशन लेके आऊंगा. रही बात सेशन की, तो मैं ARD से रिलेटेड के सेशंस की बात कर लेता हूं. यहाँ पे एक YouTube चैनल है जो कि है आपका एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, जिसपे कुछ लोग ऑलरेडी इस सेशन को देख रहे हैं. आपको रोज 3 डेडिकेटेड शोज मिल जाते हैं फॉर नाबार्ड, ठीक है. एक है आपका सबसे पहले सुबह 9 बजे एग्री करंट अफेयर्स, दैट इज दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस. ओके 10 बजे और 11 बजे आपको ये जो ARD में जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है ना वो आपको मिलता है, ठीक है. रोज आपको अलग टीचर्स मिलेंगे, अलग सब्जेक्ट्स मिलेंगे, मतलब 6 दिन में 6 into 2 12 क्लासेस एंड 12 सब्जेक्ट्स. ओके हाँ 12 सब्जेक्ट्स में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है एक दो जो आपको नहीं चाहिए, बट बाकी के सारे सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं. ओके
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बताऊं हमारे नाबार्ड स्पेसिफिक सेशंस कुछ हैं, जी हाँ बहुत जल्दी आ रहे हैं. वी विल बी हैविंग यूट्यूब सेशंस वेरी सून स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली इन द इवनिंग, क्योंकि नाबार्ड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हैं, दोज आर ऑफिस गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है. तो ऑब्वियसली हमारा जो यहाँ पे सेशन रहेगा दैट विल बी इन द इवनिंग, मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 7 PM, ठीक है. 7 PM पे आपको सेशन मिलेगा, हर दिन एक सेशन मिलेगा नाबार्ड का. यहाँ पे अलग अलग टीचर्स अलग अलग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, सब्जेक्ट्स को डील करेंगे. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपके लिए क्या कोई डेडिकेटेड बैच है जहां पे आप ज्वाइन करके इस चीज का जो प्रिपरेशन है ना नाबार्ड का वो और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो. देखो वैकेंसी अभी आई नहीं है, वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, बट दिस इज अ फाउंडेशन बैच जहां पर आने वाले नाबार्ड ग्रेड ए के वैकेंसी के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. अगेन गाइस फेज 1 में ARD 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स आते हैं, एंड जो एग्रीकल्चर स्पेसिफिक वैकेंसीज होती है उसमें तो फेज 2 में भी पूरा का पूरा जो पेपर रहता है इंग्लिश के साथ ESI की जगह ARD रहता है, ठीक है. चलिए सो बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बैच की. बैच की अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट. सो आप लोग adda247.com या फिर adda247 के मोबाइल एप्लीकेशन पे जा सकते हैं और वहां पे आपको सिंपली नाबार्ड सर्च करना है, NABARD. जैसे ही आप नाबार्ड यहाँ पे सर्च करते हैं आपको जो भी नाबार्ड से रिलेटेड बैचेस हैं वो दिख जाएंगे. ओके, सो आप जैसे बहुत क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नाबार्ड का एक तो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज लिखा है एंड एक एग्रीकल्चर लिखा है. जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ कि ये जो है यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज नहीं है. दिस बैच इज फॉर द जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है, मतलब जिनके फेज 2 में ESI और इंग्लिश आएगा, ठीक है. सो बहुत जल्दी ये थंबनेल आपका अपडेट हो जाएगा, सो आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो. थंबनेल से नो टेंशन, जहां पे आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज दिख रहा है दिस इज एक्चुअली फॉर जनरल स्टूडेंट्स. ओके, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. अगर यहाँ पे सबसे पहले तो गाइस कोई भी बैच में आप एनरोल करने से पहले प्लीज गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन. ओके, कौन सा सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, GA, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज. एंड अनदर थिंग, दिस बैच इज अ कंप्लीट बैच, दैट मींस आपको फेज 1 एंड फेज 2 दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल होंगे. ओके, एंड दिस इज अ फाउंडेशन बैच, ठीक है. ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है कि 1 महीने बाद एग्जाम है ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है. जो ARD के क्लासेस हैं, ESI के क्लासेस हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट के क्लासेस है ना वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होने वाले हैं, एंड बोथ फॉर फेज 1 एंड फेज 2 आपका अप्रोच यहाँ पर रहने वाला है. इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू बाय नाउ एंड यू हैव टू अप्लाई द कोड नाबार्ड, ठीक है. एग्जाम का नाम आपका नाबार्ड है और यहाँ पे जो कोड आपको अप्लाई करना है दैट इज ऑल्सो नाबार्ड. और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, हियर इट इज 3219 का ये बैच है. मेक श्योर यू आर एनरोलिंग थ्रू द एप्लीकेशंस बिकॉज आपको वहां पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिसके वजह से आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलते हैं. एंड इफ यू आर एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जिसके फेज 2 में इंग्लिश और ARD आएगा, तो दिस इज द बैच फॉर यू. नाबार्ड ग्रेड A 2022 कंप्लीट फाउंडेशन बैच एग्रीकल्चर. Okay, so you can go ahead and enroll in this batch. Okay, this यहाँ पर भी आपको सेम कोड यूज करना है, that is नाबार्ड. आपको फेज 1 दोनों का कॉमन है तो सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, फेज 2 में चेंजेस देखने को मिलते हैं. Again it is same, that is 3219. Please go ahead and enroll through the application. Okay. और अगर आप कोई एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है एंड आप बहुत डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चर एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन यू कैन गो अहेड एंड एनरोल इन द एग्रीकल्चर महापैक. आई गेस गाइज आपको नाबार्ड के बारे में सारे इंफॉर्मेशन मिल गए होंगे. सर इज देयर डिस्क्रिप्टिव बैच फॉर नाबार्ड? नो रवि. गाइज फेज 1 और फेज 2 का कोई अलग से बैच नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल कंप्लीट फाउंडेशन आपको बैच आपको मिलेगा, बोथ फॉर फेज 1 एंड फेज 2. मतलब इसमें जो प्रिपरेशन होगा वो फेज 1 का भी होगा और फेज 2 का भी होगा. ओके, सो आई गेस आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा. इट्स टाइम टू रैप द सेशन एंड मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी हमारे रेगुलर सेशंस में. जुड़े रहिए हमारे साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 एंड रेगुलेटरी बॉडीज अड्डा 24/7 में टू नो मोर अबाउट नाबार्ड एंड नाबार्ड सेशंस. ओके, फैकल्टी से आप लोग मिल लिए हैं, अब बस टाइम है ताबड़तोड़ तैयारी करने का, राइट? So let's gear up and we will meet again in another session. Till then guys, take care, bye bye, and don't forget to subscribe, like and share the session.